ناول قسط نمبر 18 صنفا مہر نور۔ حویلی والے ارمان کو مانی کہہ کر پکارتے تھے، مگر اقصیٰ کو یہ نام پسند نہیں تھا، اس لیے اس نے حیدر کہنا شروع کر دیا۔ ماہی کبھی جان نہ سکی کہ مانی کا مطلب کیا ہے، وہ تو اسے بس حیدر کے نام سے جانتی تھی۔ حویلی سے نکلنے کے بعد وہ کراچی میں اپنی پھپھو راحیلہ جمال کے ہاں آ گیا۔ حماد خان اپنی بہن کے ساتھ رابطے میں تھے، اسی وجہ سے انہوں نے حیدر کو یہاں بھیج دیا۔ یہاں رہنے کے بعد اس نے اپنی پڑھائی مکمل کی۔ ایف ایس سی کرنے کے بعد 18 سال کی عمر میں اس نے پولیس فورس جوائن کی۔ وہ اسپیشل فورس میں تھا، ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی مکمل کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ نائٹ شفٹنگ میں فورس کی ڈیوٹی کرتا۔ وہ پچھلے 9 سالوں سے فورس میں تھا اور اس وقت اس شہر کا اے ایس پی تھا۔ شہر کے بہت کم لوگوں نے اس کی شکل دیکھی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ اے ایس پی کیسا دکھتا ہے۔ اس نے اپنا نام ارمان احمد رکھ دیا، حماد احمد اس کا سر نیم تھا۔ حیدر کے نام کو وہ سینے میں دفن کر گیا۔ اس کے بعد 24 سال کی عمر میں اس نے اپنا الگ گھر لے لیا۔ شہر کے ایک بہت بڑے علاقے میں ایک اچھی بلڈنگ میں اس کا اپنا فلیٹ تھا۔ وہ اپنی پھپھو کو اماں ہی کہتا تھا، کبھی کبھار ان سے ملنے چلا جاتا، کبھی وہاں رک جاتا۔ اس رات اسٹیشن میں وہ کسی کام سے گیا تھا، جس شخص کو اسے پکڑنا تھا وہ پہلے ہی بھاگ چکا تھا۔ اتنے میں اسے آرزو کا میسج ملا کہ وہ اماں کو پک کر لے، مگر جب تک اماں کو پک کرنے پہنچا اماں بھی جا چکی تھی۔ پھر واپسی پر آتے ہوئے اس کے کانوں میں ماہی کی آواز پڑی۔ اس کا دل چاہا وہی آواز بار بار سنے، مگر دل کو ڈانٹتے ہوئے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی منزل کی جانب بڑھا لے گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، اسے سڑک پر دوبارہ وہی لڑکی دکھائی دی، مگر اب اس کے سامنے 3 گنڈے کھڑے تھے۔ حیدر کو اچانک ہی خواب میں ہیر کی وہ بچانے کی آوازیں یاد آئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اترا اور اس لڑکی کی مدد کی۔ جب پہلی بار اس نے ماہی کا چہرہ دیکھا تو اسے لگا وہ اس چہرے کو پہلے سے جانتا ہے، مگر بہت کوشش کے باوجود وہ شکل یاد نہیں کر پایا۔ اس نے ماہی کی سالگرہ سے اگلے دن جو لینس اپنی آنکھوں پر لگائے تھے وہ کالے رنگ کے تھے، اس لیے ہیر اس کی آنکھیں پہچان نہیں پا رہی تھی۔ مگر اگلے دن یونیورسٹی میں ہیر اس سے آ کر ٹکرائی تو ان آنکھوں کو دیکھ کر پتہ نہیں کیوں اسے یقین ہو گیا کہ یہ آنکھیں اس کی ہیر کی آنکھیں ہی ہیں۔ وہ ہیر کی آنکھیں کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ اس کے بعد اس پر عجیب سا جنون سوار ہو گیا۔ وہ خواب بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ پھر اس نے ان لڑکوں کی وہ دھڑائی کی کہ حد نہیں۔ اس کے بعد جب ماہی نے تائی کا نام لیا تب بھی ارمان حیران ہوا تھا۔ اس نے ماہی کی ساری انفارمیشن جاننے کی کوشش کی، مگر صرف یہ جان پایا کہ اس کا تعلق لاہور سے ہے۔ اسے شک تھا کہ یہ لڑکی کون ہے، اس لیے اسے سچ تک پہنچنا تھا۔ اس کے بعد کینٹین پر دوبارہ ماہی کو مصیبت میں دیکھ پھر اسے غصہ آیا اور بریانی اس نے ماہی کا ٹیسٹ لینے کے لیے منگوائی تھی، اور اس کی سوچ کے برعکس ماہی کی حالت ٹھیک نہ رہی اور اس پر ایک عجیب انکشاف تب ہوا جب اس نے کہا کہ اس 14 سالوں سے بریانی نہیں کھائی۔ سب سے زیادہ حیرت اس 14 سال لفظ پر ہوئی تھی۔ اتنے سالوں پہلے ہی تو ہیر اور حیدر الگ ہوئے تھے، مگر یہ لڑکی تو ماہی تھی، اس کی ہیر کیسے ہو سکتی تھی؟ جو بھی تھا اسے سچائی کا پتہ تو لگانا ہی تھا۔ تب اس کا شک اور مضبوط ہو گیا کہ کیا یہ اس کی ہیر تو نہیں۔ ایکسیڈنٹ کی حالت میں ماہی کے منہ سے وہ الفاظ سن کر حیدر بہت بے چین ہو گیا۔ اسے شدت سے جانا تھا کہ وہ کس کی بیوی تھی، اسے صرف یہ جاننا تھا کہ کیا وہ اس کی ہیر ہے۔ اس کا دل کیوں کہتا ہے کہ یہ لڑکی اس کی ہیر ہو سکتی ہے؟ اس 1 ماہ میں اس کا دل اس کے قابو میں نہیں رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی ہیر کو خواب میں نہیں دیکھا تھا، اس لیے بہت بے چین تھا۔ جب سے اس نے ماہی کی آواز اور اس کی شکل دیکھی تھی اسے ہر جگہ بس وہی دکھائی دی جا رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس جذبے کو کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ اسے ہیر کے خواب آنے کم ہو گئے، اب اسے ہیر کسی مصیبت میں نظر نہیں آتی تھی۔ جب وہ خود ہی اپنی ہیر کی حفاظت کر رہا تھا تو پھر وہ کیسے کسی مصیبت میں ہوتی؟ مگر تب حیدر یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس کا دل بہت بے چین تھا۔ کیا اس کی ہیر اس سے ناراض ہو گئی تھی؟ اس نے تو کبھی کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر یہ ماہی آخر کون تھی جس کے دل میں خود ہی زبردستی داخل ہو گئی تھی؟ پھر ایک رات اس نے خواب دیکھا، ہیر ایک جوان لڑکی کی صورت میں سامنے آئی، مگر اس کا چہرہ واضح نہ تھا۔ وہ بار بار حیدر کو بس ایک ہی بات کہہ رہی تھی، آپ نے مجھے بھلا دیا، آپ اب کسی اور کو وہ مقام دے چکے ہیں جو میرا تھا۔ ہیر کی بات سن کر حیدر تڑپ اٹھا اور اس کے بعد اس نے ماہی کو دل سے زبردستی نکالنے کا فیصلہ کیا۔ وہ راتوں کو سجدوں میں گر کر اپنے اللہ پاک سے اپنی ہیر کے ملنے کی دعائیں مانگنے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کے دل میں کسی غیر محرم لڑکی کے لیے کوئی جگہ بنے، مگر پھر تصویر دیکھ کر اس پر انکشاف ہو گیا کہ ماہی ہی اس کی ہیر ہے۔ وہ کتنے پل ساکت بیٹھا اسے اندازہ نہ ہوا۔ اس تصویر کو دیکھ کر اسے لگا وہ کبھی سانس نہیں لے پائے گا۔ اسے اپنے باپ کے الفاظ شدت سے یاد آئے، انہوں نے کہا تھا قسمت اسے خود تمہارے پاس لائے گی، اور واقعی قسمت اسے لے آئی تھی۔ قسمت لائی تھی یا قدرت، یہ وہ جان نہ سکا۔ اس انکشاف کے بعد حیدر کی حالت ٹھیک نہ رہی۔ اس کا دل چاہا وہ دھاڑے مار مار کر روئے اور اپنے اندر 14 سالوں کا سارا غبار باہر نکال دے۔ اس کا دل اسی لیے بار بار ہیر کی طرف متوجہ ہو رہا تھا۔ وہ اس کی محرم تھی، اس کی بیوی تھی، اسے ماہی سے محبت
नहीं हुई थी। उसे इस एहसास से मोहब्बत हो गई थी जो उसकी हीर का था। वो इसकी हीर थी, इसलिए उसका दिल इतना खींचा जा रहा था। वो तो रूह का रिश्ता था, इसलिए अरमान हैदर की रूह ने इस रूह को पहचान लिया था, इसलिए उसकी रूह हीर की रूह की तरफ शिद्दत से बढ़ने लगी। बस वो पहचान ना पाया, इसलिए उसे माही से ना चाहते हुए भी मोहब्बत होने लगी, क्योंकि वो हीर थी, उसकी हीर। मगर उसे समझ ना आई आखिर हीर किस तरह इस तरह कराची पहुंची। फिर उसे अम्मा के वो अल्फाज शिद्दत से याद आए जब अम्मा ने कहा था, मुझे उसकी पहचान वाले सवाल की समझ नहीं आई। मगर आज हैदर को समझ आ गई थी। वो अपनी पहचान यानी अपने शौहर को ढूंढने के लिए उस शहर में आई थी। उसे समझ ना आया वो क्या करे। मुझे सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ, उसे अल्लाह पाक के घर जाना चाहिए। वो घर गया, खून आलूदा कपड़े उतारे, शावर लेकर मस्जिद गया, शुक्राने के नवाफिल अदा किए और रो रो कर अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया जिसने उसके 14 सालों का फल उसे दे दिया था। और इस वक्त वो माहिर के सामने बैठा था। जब से वो माही से मिला था, कुछ तो था उसे माही की तरफ बार बार अट्रैक्ट करता था। और आज हैदर को अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। वो शक्ल जो उसे माहिर की तरफ देखकर बार बार आती थी, आज समझ आ गई कि वो इसकी छोटी मम्मा की शक्ल थी। वो बिल्कुल अक्सा की कॉपी थी। हाँ, उसे अपनी हीर से इश्क था। अगर ये लड़की सिर्फ माही होती तो अरमान के लिए उसकी कोई अहमियत नहीं होती, मगर वो इसकी हीर थी और इसलिए वो सबसे ख़ास थी। वो तो हीर तक पहुंच चुका था, मगर अभी हीर को इसको ढूंढ कर उस तक लाना था। नर्स जा चुकी थी, मगर हैदर अभी तक वैसे ही बैठा माही के चेहरे को देख रहा था। दिमाग में दोपहर में हुई वो सारी बातें चल रही थीं जो माही दर्द की शिद्दत में तड़पती हुई उससे बता रही थी। उसने कहा से अपने शौहर से इश्क है। वो अल्फाज याद आते ही इस वक्त अरमान हैदर के जिस्म और जान में बहुत सुकून उतर रहा था। उसका दिल चाहा वो अपनी हीर को इस जालिम दुनिया से बचाकर सीने में छुपा ले। किस तरह यूनिवर्सिटी में वो शख्स उसकी हीर को छू रहा था, वो सब याद आते अरमान हैदर की हेज़ल ग्रीन आंखों में गुस्से के बायस लाल रंग उतर आया। इस रोज़ उसने इस लड़के को मार मार कर अधमरा कर दिया था। काश उसे जान से मार देता। अगर हैदर को इस दिन पता होता कि माही उसकी हीर है तो वो अमीर ज़्यादा इस दुनिया से गायब हो चुका होता। कोई नहीं जानता था अरमान हैदर सिर्फ एक चीज़ से जुनून की हद तक इश्क करता है और वो इसकी बीवी माहिर हैदर है। अचानक अरमान को महसूस हुआ कि हीर के हाथ में हरकत पैदा हुई। वो झटके से सीधा हुआ और माही की तरफ मुतवज्जह हुआ। उसने देखा हीर के होंठ हिल रहे थे। वो शायद कुछ कह रही थी। अरमान मज़ीद पास हुआ और गौर से सुना तो वो एक लफ्ज़ बोल रही थी जिसने अरमान हैदर को साकित कर दिया। उसके होंठों से बार बार एक लफ्ज़ अदा हो रहा था और वो लफ्ज़ था हैदर। अरमान का दिल चाहा वो सारी दुनिया को आग लगा दे। उसकी बीवी इस वक्त कितनी तकलीफ़ में थी। उसने हुक्म दिया था कि जिस शख्स ने हीर को टक्कर मारी उसे ढूंढा जाए। कुछ देर पहले ही उसे पता चला था कि वह शख्स पकड़ा जा चुका है। ये याद आते ही अरमान अपना फ़ोन निकाला और वो किसी को कॉल मिला रहा था। जैसे ही कॉल रिसीव हुई, अरमान की आवाज़ हॉस्पिटल के इस कमरे में गूंजी, इस आदमी को छोड़ दो जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था। वो मुकाबले से गोया हुआ, मगर सर आपने तो कहा था कि इसने मैडम को नुकसान पहुंचाया है। और अरमान हैदर तो इस शख्स का शुक्रगुजार था जिसकी वजह से उसे उसकी हीर मिल गई थी। अगर आज ये हादसा ना हुआ होता तो मालूम नहीं वो कभी जान भी पाता कि जिस माही को वो इतने करीब से जानता है वही उसकी हीर है। मैंने कहा इस शख्स को बहुत बाइज्जत तरीके से माफ़ी मांग कर छोड़ दो। आपके वो सर लहजे में धड़ा। मुकाबिल हड़बड़ा गया और उससे पहले वो कुछ बोलता अरमान ने बिना बात सुने फ़ोन काट दिया। अब वो दोबारा से हीर की तरफ मुतवज्जे हुआ। इस वक्त उसे अपनी बीवी पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही थी, और होती भी क्यों ना, वो वाकई ही खूबसूरत थी। अरमान का शिद्दत से दिल चाहा वो अभी माही की खुली हुई आंखें देखे। आज उसके सारे वादे पूरे हो गए थे। अपनी माँ, बाप, चाचू चाची से किया वादा, अब वो हीर को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो सारी रात उसके पास बैठा रहा, वक्फे वक्फे से उसकी पेशानी पर बोसा देता, उसकी तबीयत पर गौर करता। उसके चेहरे पर से नज़रें नहीं हटाईं और सारी रात गुजर गई। दिन की रोशनी फूट चुकी थी। इस वक्त वो दोबारा अरमान अहमद बनकर माही के सामने बैठा था। अभी शायद सही वक्त नहीं आया था माही को ये बताने का कि हैदर उसे ढूंढ चुका है। माही को भी मेहनत करनी थी अपने हैदर तक जाने में। इस तरह अगर वो मुंह उठाकर कह देता कि मैं ही हैदर हूँ तो क्या वो यकीन कर लेती। 9 बजे के करीब जाकर माही ने अपनी आंखें खोलीं। इस वक्त हॉस्पिटल में सारे मौजूद थे। एक तरफ आरजू खड़ी थी तो दूसरी तरफ अरमान दरवाजे के करीब एक पाँव दीवार के साथ लगाए दूसरे पाँव के सहारे खड़ा था, और अम्मा माही के पास कुर्सी पर बैठी थी। माही की आंखें खुलती देखते वो तीनों फ़ौरन मुतवज्जे हुए। माही मेरी बच्ची, बहुत शुक्र तुम्हें होश आ गया। अम्मा ने आगे बढ़कर उसकी पेशानी चूमी। आरजू और अरमान भी आगे बढ़े। माही ने आंखें खोलने के बाद अपने आसपास देखा, याद करने की कोशिश की
کہ क्या हुआ था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे सब कुछ याद आ गया। उसकी नज़र बेसाख्ता अरमान की तरफ उठी। अरमान उसकी आंखों में मौजूद सवाल भर चुका था, मगर जो दिल अंदर हैदर के सीने में था, इसमें बहुत तकलीफ़ थी। उसे इस हालत में भी अपनी तस्वीर की पड़ी थी। वो हर कदम पर यह साबित कर रही थी कि वो अपने शौहर के लिए क्या महसूस करती है। अरमान ने उसे आंखों ही आंखों में इशारा किया, जिस वजह से वो कुछ पुरसुकून हुई। उसकी नज़र बेसाख्ता पूरे कमरे में घूमी, फिर अपनी बाईं तरफ से मेज़ पर अपना बैग और एक एनवेलप पड़ा नजर आया। वो जान गई इसमें ज़रूर तस्वीर होगी। वो दिल से अरमान की शुक्रगुजार हुई जिसे सुकून मिल गया हो। 2 दिन बाद माही डिस्चार्ज हुई थी। अम्मा उसे घर वापस ले आई थी। 2 दिनों में अरमान से उसकी कोई बात नहीं हुई थी, क्योंकि 24 घंटे अम्मा उसका ख्याल रखने के लिए मौजूद थीं। और अरमान बस यही सोचता रहा था, बिना किसी रिश्ते के उनके दिल में हीर के लिए इतनी मोहब्बत क्यों पैदा हो गई। ये खून के रिश्ते थे जिनमें कशिश थी। अगर उन्हें पता चल गया कि ये उनके लाडले भाई सलीमान की बेटी है, तो वो माही पर सदके वारी जाएंगी। उसे अभी तो इन्हें भी ये सच बताना था। इस वक्त आरज़ू माही के कमरे में मौजूद थी और एक्सीडेंट की वजह पूछ रही थी। इससे पहले अरमान कमरे में दाखिल होता, उसके कानों में इन दोनों की बातों की आवाज़ गूंजी। क्या तुम पागल हो गई थी? एक तस्वीर के लिए सड़क पर चल पड़ी? यह आरज़ू की आवाज़ थी, जो कुछ हैरानी और गुस्से से माही को डांट रही थी। नहीं आपी, वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, वो मेरी ज़िंदगी भर की कमाई थी। माही की कमज़ोर सी आवाज़ अरमान के कानों में पड़ी। दिल में एक बार फिर तकलीफ़ की लहर दौड़ी। दिल ने कहा, जल्दी से जाओ और इस अपने सीने से लगा कर बोलो कि मैं ही तुम्हारा हैदर हूँ। आखिर ऐसा क्या था उस तस्वीर में? अब क्या आरज़ू ने कुछ झुंझला कर पूछा। वो मेरे निकाह की तस्वीर थी, मेरे शौहर के साथ। और आरज़ू को अपने सर पर कोई बम फटता हुआ महसूस हुआ। व्हाट? वो चीख उठी और दरवाज़े के बाहर अरमान ने अपनी इस ड्रामेबाज बहन की ओवर एक्टिंग पर बेजारियत से आंखें बेचीं। इसकी दोनों बहनें कमाल थीं। एक को मक्खन लगाने की आदत थी तो दूसरी को ओवर एक्टिंग की। और अरमान को बेसाख्ता अनुषा याद आई। माही जानती होगी कि वो कैसी है, किस हाल में है। सिर्फ उसकी हीर ही सारे सवालों के जवाब दे सकती थी। अब माही आरज़ू को अपने निकाह के बारे में बता रही थी। क्या मतलब? वो तुम्हें छोड़कर चला गया? ऐसे कैसे कोई छोड़कर जा सकता है? यह आरज़ू की आवाज़ थी। मैं भी पहले यही सोचती थी, मगर जिस दिन कराची आई, इससे 3 दिन पहले मेरी दादी की वफ़ात हुई। वो मेरे लिए मेरे ताया का ख़त छोड़ कर गई थी, जिसमें सारी वजूहात लिखी थी, जिसकी वजह से मेरा शौहर कभी वापस नहीं आया। अब मुझे इससे कोई गिला शिकवा नहीं, बस मैं चाहती हूँ वो कहीं से आ जाए। मेरी आंखें तरस गई हैं उस शख्स को देखने के लिए, और ये कान तरस गए हैं उसके मुँह से अपने लिए हीर सुनने के लिए। आरज़ू यकटक इसको देखे जा रही थी और दरवाजे के बाहर खड़े अरमान हैदर की सारी दुनिया साकत हो चुकी थी। तुम्हें तो पता भी नहीं वो कैसा दिखता होगा, फिर भी उससे इतनी मोहब्बत करती हो। ये सवाल सुनकर माही के होंठों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई और दरवाजे के बाहर खड़े अरमान हैदर का हर उज़्व कान बन गया। इस सवाल का जवाब उसे शिद्दत से जानना था। मोहब्बत शक्ल सूरत देख कर नहीं होती, और वो मेरा महरम है। मैंने खुदा से हमेशा दुआ की है कि मेरे दिल में सिर्फ मेरे महरम के लिए ये मोहब्बत डालना। मुझे उसकी रूह से इश्क है। चेहरा जैसा भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो गरीब हो, सिर्फ 2 वक्त की इज़्ज़त की रोटी दे दे। इस सारी दुनिया में वो मेरा महरम, मेरा मुहाफ़िज़ है। अगर मुझे कहीं सुकून मैसर हुआ तो उसके साथ होगा। जिस दिन से वो मुझे छोड़ कर गया, उस दिन से लेकर आज तक मैं उसकी इमानत बनकर रही। कभी किसी गैर मर्द की तरफ आँख उठाकर नहीं देखा, और मैं आज भी उसकी वफ़ादार हूँ। अरमान को लगा जैसे कोई उसके दिल में सुकून उतार रहा था, और आरज़ू को उसकी इस तरह की मोहब्बत पर रश्क आया। कुछ देर के बाद अरमान ने अपने आप को कंपोज़ किया और नाक करने के बाद अंदर दाखिल हुआ। चेहरे को नॉर्मल रखा। हाय गर्ल्स, कैसी हो? माही, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? वो माही के रूबरू आया और इससे सवाल पूछ रहा था। जी, पहले से बेहतर है, आपका बहुत शुक्रिया। इससे पहले माही मज़ीद कुछ बोलती, अरमान फ़ौरन आरज़ू से बोला, कैसी बहन हो? तुम्हारा भाई बाहर से आया है, जाओ जूस लेकर आओ मेरे लिए। बाहर से आए हैं? कौन सा कोई महाज फ़तह कर लिया? और इतने मुलाजिम हैं, इनमें से किसी से कह दें। अरमान उससे फुल तपाने के मूड में था। नहीं, मुझे तो अपनी बहन के हाथों से ही जूस लेना है, जाओ मेरे लिए लेकर आओ। काली बिल्ली। अरमान की ये बात सुनते फ़ौरन उठी और लड़ाका औरतों की तरह दोनों हाथ कमर पर रख कर बोली, कितनी बार कहा है आपको मुझे काली बिल्ली ना कहा करें। खुद आप नकली काले बिल्ली हैं, पता नहीं ये भाई ऐसे क्यों होते हैं। वो बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर निकल गई और पीछे माही इन दोनों की नोक झोंक पर मुस्कुरा कर रह गई। तुम्हारा दिमाग काम करता है? ट्रैफिक से चलती सड़क पर कौन अंधाधुंध भागता है? आखिर ऐसा भी क्या था, तुम अपनी जान की परवाह किए बगैर सड़क पर आ गई? आरज़ू के कमरे से निकलने के बाद अब वह माही से मुखातिब था। लहजे में धीमा सा गुस्सा था। माही ने गर्दन मोड़कर अरमान की तरफ देखा। वह समझ ना सकी आखिर उसका ऐसा रिएक्शन क्यों था। इनफैक्ट सबका ही ऐसा रिएक्शन था। आपके लिए वो मामूली सी बात होगी, मेरे लिए वो तस्वीर मेरी जान से ज़्यादा कीमती थी। माही मजबूत लहजे में बोली, आखिर ऐसा भी क्या था उस तस्वीर में? सिर्फ एक तस्वीर ही तो थी। माही को तो गुस्सा ही आ गया। आपके लिए वो सिर्फ एक तस्वीर होगी, मेरे लिए वो मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती है। वो मेरे निकाह की तस्वीर है और इसमें मौजूद शख्स मेरा शौहर है।
आपको कोई हक नहीं पहुंचता आप मेरे पर्सनल्स में इस तरह इंटरफेयर करें। आपने वो तस्वीर और मेरी जान दोनों बचाए, इसके लिए मैं आपकी कर्जदार हूँ। इसका मतलब ये नहीं आप मुझ पर कोई हक जताएं। माही का लहजा गुस्से के साथ ना चाहते हुए भी ऊंचा हो गया और अरमान को एहसास हुआ वो गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गया था। वो क्यों भूल गया कि जिस तस्वीर के लिए वो अपनी जान भी दे सकती थी वो उसके लिए कितनी अहमियत की हामिल थी। वो एक झटके से उठा। तुम्हारे लिए वो बेजान तस्वीर कीमती थी, मगर हो सकता तुम्हारे शौहर के लिए तुम्हारी जान इस तस्वीर से ज़्यादा कीमती हो। अपनी जान की हिफाजत करो, बेजान चीज़ों की नहीं। ये कहते साथ वो एक मिनट ना रुका और कमरे से निकल कर माही पीछे उसके आखिरी लफ्ज़ों में उलझ कर रह गई। ये क्या कहकर गया था वो? काफ़ी देर तक वो सोचती रही, वो ठीक ही तो कह रहा था। माही 4-5 दिन जमाल हाउस रही। इस दौरान राहिला ने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा, मगर उस दिन के बाद उसकी अरमान से कोई बात नहीं हुई। वो गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी और ये भी भूल गई कि अरमान ना होता तो उसकी जान और वो तस्वीर दोनों ही नहीं बचते। इसे अरमान से अपने किए की माफ़ी मांगनी चाहिए थी, मगर उसे मौका ना मिला। अब तो इसे हॉस्पिटल अब तो इसे हॉस्टल आए भी 10 दिन हो चुके थे। उस दिन के बाद उसके अरमान से कोई मुलाकात नहीं हुई। वो इस वक्त टेरेस पर बैठी इस तस्वीर को हाथ में लिया आसमान पर चांद को देख रही थी। रात गहरी से गहरी हो रही थी। अमाया उसे ढूंढती हुई उसके पास आई। माही, काफ़ी रात हो गई है, चलो आओ सो जाओ। माही से बात करते हुए अचानक उसकी नज़र माही के हाथ में मौजूद उस तस्वीर पर पड़ी। ये तस्वीर? उसने बेसख्ता हाथ आगे बढ़ाकर वो तस्वीर उठा ली। माही जो खलाओं में घूर रही थी, अमाया की बात सुनकर उसकी तरफ एक झटके से देखा। क्या हुआ? माही के सवाल पर माया के चेहरे पर सोच की लकीरें आईं। ये तस्वीर, मुझे लगता है मैंने उसे कहीं पहले देखा है। और माही को लगा उसकी सारी दुनिया रुक गई है। कोई शोरगुल की आवाज़ कुछ भी कानों में नहीं पड़ रहा था। बस सामने माया और उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज थे। वो बेताबी से सीधी हुई और बोली, आपने कहाँ देखी थी आपी? प्लीज़ बताएं ना। कहीं तो देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा। उसके बाद माया वहीं टेरेस में चक्कर काटने लगी और याद करने की कोशिश की। हाँ, याद आ गया, मैंने उसे कहाँ देखा था। और माया के जिस्म का हर हिस्सा कान बन गया। वो बहुत बेताबी से जानना चाहती थी उसने ये तस्वीर कहाँ देखी। प्लीज़ जल्दी बताएं ना, आपने ये तस्वीर कहाँ देखी थी? ये तस्वीर तो मैंने तुम्हारे कज़न अरमान के घर में देखी थी 2 साल पहले, जब उसके टॉप करने की खुशी में हम सारे क्लास वाले उसके फ्लैट में गए थे। उसके अपार्टमेंट में उसके बेडरूम में ये तस्वीर लगी थी। वो तो मैं उसका वॉशरूम यूज़ करने के लिए कमरे में गई तो मेरी नज़र पड़ी थी, मगर ये तस्वीर तो कुछ अलग है। वो बहुत खूबसूरत फ़ोटो फ्रेम में लगी थी और उसके नीचे कुछ लिखा भी था। क्या लिखा था? हाँ, वो लिखा था, एज लव्स एज। और इस तस्वीर पर लाल रंग भी नहीं लगा था। इस पर तो शायद रंग के छींटे पड़ गए हैं। इस तस्वीर ने मुझे उस दिन बहुत अट्रैक्ट किया था। मैंने अरमान से पूछा तो उसने मुझे बताया उस तस्वीर में जो बच्चा है वो खुद है। बच्ची का पूछा तो उसका लहजा बहुत अजीब था और बोला तो उसने कहा कि वो उसकी दुनिया है। मैं इसकी बात समझ ना सकी, मगर तुम्हारे पास ये तस्वीर कहाँ से आई? ये तो उसके बेडरूम में लगी थी। और माही को लगा वो अगला सांस नहीं ले पाएगी। उसकी सारी दुनिया साकत और जामद हो चुकी थी। उसका हाथ बेसाख्ता अपने होंठों पर गया। आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। क्या ये उसकी किस्मत थी? क्या ये सच था? अरमान ही उसका हैदर था? उसके जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। उसे सच जानना था। उसकी सोचों को माया की आवाज़ ने तोड़ा। माही, तुम्हें ये तस्वीर कहाँ से मिली? माही ने खुद पर कंट्रोल किया और बोली, वो कुछ दिन पहले मैंने इनसे कुछ नोट्स लिए थे, शायद गलती से नोट्स में आ गई थी। डोंट वरी, मैं वापस नोट्स में रख कर ही दे दूँगी। उनको पता नहीं चलेगा। आप भी मत बताइएगा तस्वीर के बारे में, शायद उन्हें अच्छा ना लगे कि मैं उनकी पर्सनल तस्वीर देख रही थी। माही ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया और उससे कमरे में आने की हिदायत करती हुई चली गई। माही ने फ़ौरन मोबाइल निकाला। अब उसके हाथ तेज़ी से अनुषा का नंबर डायल कर रहे थे। बेल जा रही थी और एक लंबी खामोशी के बाद अनुषा की हेलो की आवाज़ उभरी। आप भी? हैदर का पूरा नाम क्या था? प्लीज़ जल्दी उसे बताएं। अनुषा जो नींद में थी, माही की इस कदर बेताब आवाज़ पर फ़ौरन उठ बैठी। पूरा नाम तो वो मुझे नहीं पता। ये सुनकर माही अफसरदा हो गई। आप ही कुछ तो पता होगा, हवेली वाले उन्हें क्या कहकर पुकारते थे? एक लंबी खामोशी के बाद अनुषा की आवाज़ मोबाइल फ़ोन में से उभरी। मानी। अरमाही के आसपास सब कुछ रुक गया। मानी मतलब अरमान? फ़ोन बेसाख्ता उसके हाथ से नीचे गिर गया। उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी और अनुषे हेलो हेलो ही करती रह गई। अरमाही को बेसाख्ता वो रात याद आई जब वो दुआएं कर रही थी। हैदर उसे ढूंढ ले और इसे अरमान मिल गया। अरमान की तो काली आंखें थी, वो इसका हैदर कैसे हो सकता था? उसे अभी सच जानना था। उसने जल्दी से मोबाइल उठाया। अब उसके हाथ तेज़ी से आरजू का नंबर मिला रहे थे, मगर आरजू मैडम तो मोबाइल साइलेंट पर लगाकर सो चुकी थी। बार बार ट्राई करने के बाद भी जब आरजू की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना मिला तो माही ने सुबह का इंतज़ार करने का फ़ैसला किया। अब उसे एक नई सुबह का शिद्दत से इंतज़ार था।
एक नई सुबह तुलू हो चुकी थी। सारी रात माही ने बहुत इज़्तिराब की कैफियत में गुजारी। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या सच है, क्या वो कैसे हकीकत तक पहुंचेगी। इस वक्त वो आरजू के डिपार्टमेंट में बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। वो लाइट पर्पल कलर की शर्ट, ट्राउज़र और हमरंग दुपट्टे के साथ स्किन कलर के हिजाब में और पाँव में सिंपल सा जूता था। वो मुसलसल इज़्तिराबी कैफियत में ग्राउंड में चक्कर पर चक्कर लगा रही थी। उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ। आखिरकार उसे डिपार्टमेंट के अंदर आरजू आती हुई दिखाई दी। ब्लैक टॉप के नीचे ब्लू जीन्स पहने हुए, गले में दुपट्टे को मफलर स्टाइल में डाले, पाँव जॉगर्स में मुकीद, कंधे पर बैग लटकाए मोबाइल चलाती हुई आ रही थी। माही फ़ौरन आरजू की तरफ बढ़ी। आरजू ने एक नज़र उठाकर सामने देखा तो सामने से माही आ रही थी। वो इतनी सुबह माही को अपने डिपार्टमेंट में देखकर हैरान रह गई। वो दोनों नज़दीक आ चुकी थीं। खैरियत? आरजू के सवाल को नज़रअंदाज करके माही बोली, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, चलें कहीं बैठ कर बात करते हैं, अगर आपके पास कुछ फ्री टाइम है तो। माही कुछ परेशान लग रही थी, इसलिए आरजू ने इस बात में सर हिलाया। इस वक्त वो दोनों यूनिवर्सिटी के कदर सुनसान ग्राउंड में बेंच पर बैठी हुई थीं। अब के आरजू ने सवालिया नज़रों से माही की तरफ देखा। वो मुसलसल अपनी उंगलियां चटखा रही थी। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, प्लीज़ मुझसे वजह मत पूछिएगा, बस मुझे उनका जवाब दीजिएगा। आरजू ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। क्या आपके भाई अरमान का काले लेंस पहनते हैं? मेरा मतलब कि उनकी असल आंखों का रंग कुछ और है क्या? ये वो पहला सवाल था जो भाई को इज़्तिराब कम कर सकता था। उसका जवाब ही तय कर सकता था कि उसे मज़ीद सवाल करने थे या नहीं। आरज़ू हैरान हुई, ये किस किस्म का सवाल था? हाँ, वो काले लेंस पहनते हैं। तो हाँ, वो काले लेंस पहनते तो हैं, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? और माही की सारी हिस्सें बेदार हो गईं। मैं आपको सारे सवालों के जवाब बाद में दूंगी। प्लीज़ मुझे बताएं उनकी आंखों का असल रंग क्या है? ये सुनकर आरज़ू सोच में पड़ गई और माही को शिद्दत से उसके जवाब का इंतज़ार था। पता नहीं, कुछ अजीब ही रंग था। एक बार मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि ये हेज़ल ग्रीन कलर है। और माही को लगा वो अगला सांस नहीं ले पाएगी। यही रंग हैदर की आंखों का भी तो था। उसको अपनी सारी दुनिया रुकती हुई महसूस हो रही थी। बहुत देर बाद वो दोबारा कुछ बोलने के काबिल हुई। आपने कहा वो आपके कज़न हैं, आपका उनसे क्या रिश्ता है? प्लीज़ मुझे उनके बारे में सब बताएं, और उनके पेरेंट्स के बारे में भी, जो भी आप जानती हो प्लीज़। मेरा जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आरज़ू समझ ना सकी माही ऐसा क्यों जानना चाह रही है, मगर माही के लहजे में बहुत ज़्यादा इल्तिजा और बेताबी थी। कुछ देर आरज़ू खामोश रही, जैसे वो अपनी सोचों को अल्फाज दे रही हो। फिर माही के कानों में आरज़ू की आवाज़ पड़ी। वो मेरे मामू के बेटे हैं। मेरी मम्मा ने पसंद की शादी की थी, इस वजह से मेरे नाना ने उनसे हर रिश्ता ख़त्म कर लिया। मेरे 4 मामू हैं और एक खाला भी, मगर मैंने सिर्फ अरमान भाई के बाबा को देखा है, वो भी तस्वीरों में। वो भी मामा से खुफिया तौर पर आकर मिलते थे। ननिहाल में कोई नहीं जानता था, और उनका नाम हमाद था। शायद वो पुलिस में थे। मैं बहुत छोटी थी। ये सब तो बस मैंने अरमान भाई और मम्मी के मुंह से सुना है। और माही की सारी दुनिया रुक चुकी थी। उसे लगा वो अगला सांस कभी नहीं ले पाएगी। साबित हो चुका था अरमान ही हैदर था उसकी आंखों के सामने। वो पहचान क्यों नहीं पाई? बहुत कोशिश के बाद भी माही अपने आंसू कंट्रोल ना कर पाई। उसके आसपास सब कुछ साख्त हो चुका था, सिर्फ दिमाग में अनुषा के अल्फाज थे। मुझे यकीन है तुम उनको ढूंढ लोगी। फिर दादी के अल्फाज आए, साबित करना वो जिंदा है। फिर ताया के अल्फाज आए, साबित करना वो सरदारी के पीछे नहीं भागेगा। फिर उसके अपने अल्फाज आए, मुझे यकीन है मेरा शौहर जिंदा है। उसे अपने इर्द गिर्द सब कुछ साकत महसूस हो रहा था। उसके दिमाग में मुख्तलिफ आवाज़ें पड़ रही थीं। आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। शायद आरजू उसे बताकर अपनी क्लास में जा चुकी थी, मगर उसने सुना ही कहाँ था। उसे मालूम ना हो सका वो कितने मिनट, कितने घंटे इस बेंच पर बैठी रोती रही। बहुत देर के बाद उसके जिस्म में हरकत पैदा हुई। उसे अपने हैदर से मिलने जाना था। वो उठी, अपने जिस्म को हिम्मत दी और अरमान के डिपार्टमेंट की तरफ चल पड़ी। इससे पहले वो इसे आसपास ढूंढती, उसने देखा ग्राउंड के ऐन बीचों बीच स्टूडेंट्स का हजूम जमा था। उसे यकीन था यहाँ अरमान मिल जाएगा, मगर जैसे वह हजूम को चीरती आगे बढ़ी, उसकी आंखों ने जो देखा उसे लगा किसी ने उसके जिस्म से रूह खींच ली हो। स्टूडेंट्स के हजूम के ऐन बीचों बीच अरमान घुटनों के बल बैठा अमा को प्रपोज कर रहा था। हर तरफ से हुटिंग की आवाज़ें, शोरगुल, मोबाइल के कैमरों की लाइट चल रही थीं, मगर माही को सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसका हैदर नहीं, ये शख्स उसका हैदर कभी नहीं हो सकता था। उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। उन कदम पीछे लेती गई। अचानक अरमान की नज़र उस पर पड़ी। उसने मकान के अंदाज में नफ़ी में सर हिलाया। अरमान ने इसकी तरफ बढ़ना चाहा, मगर वह मुड़ गई और भागती हुई डिपार्टमेंट से बाहर निकल गई। और पीछे हैदर को बहुत कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसकी आंखों में इतनी बेयकीनी क्यों थी? उसकी आंखों में आंसू क्यों थे? वो माही के पीछे भागा, मगर नहीं जान पाई माही कहाँ गई। जारी है।